प्रोफेसी کے ریلیٹڈ خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا اور کیا سکھاتا ہے؟ ہاللیلویا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی پر غور و فکر کریں تو خداوند یسوع مسیح ناصری کے دنیا سے آنے سے پہلے بہت ساریاں پروفیسی ہوئی، بہت ساری ایسی نبوت ہوئی، عیسائیہ نبی کی معرفت ہوئی، بہت سارے کلام میں ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں جو بتاتے ہیں کہ ایک ابن داؤد آئے گا، ایک یہوہ نسی آئے گا، ایک خدا تعالیٰ کا بیٹا آئے گا جو اپنے لوگوں کو ان کی ہلاکت سے رہائی دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس پروفیسی کو خداوند تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام پروفیسی کے بارے میں کیا بتاتا اور کیا سکھاتا ہے۔ آپ سب کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں ایک پروفیسی ہوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا پروفیسی ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک نبوت کا کلام آپ کے بارے میں ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا نبوت کا کلام ہوا ہے؟ وہ یسوع کے بارے میں پروفیسی ہوئی تھی، آپ کے بارے میں ایک پروفیسی ہوئی ہے۔ جی بتائیں، آپ ڈرے نہیں، جو بات ہے وہ بتائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ہمارے لیے پروفیسی کی گئی ہے۔ ہم نئے عہد نامہ میں سے پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 9ویں آیت کو پڑھنا شروع کروں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجائب روشنی میں بلایا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے لیکن اب تم میری امت ہو۔ یہ پروفیسی ہے، یہ نبوت ہے آپ کے بارے میں، یہ میرے بارے میں، مسیحی قوم کے لیے جو یسوع مسیح ناصری کو قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں پروفیسی ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جتنی نبوت خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، جتنی پروفیسی خدا کے کلام میں ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ان کے لیے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگرچہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ عہد عتیق میں جائیں تو وہاں پر خداوند کا بندہ پروفٹ ایلیا نبی یہ پروفیسی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے دیوتا کے لیے ایک مذبح بنا لو اور اس پر ایک بچڑا قربان کر کے رکھ لو، اور جو آگ کے ساتھ جواب دے گا وہی زندہ خدا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اس نے یہ پروفیسی کی، یہ نبوت کی کہ آج جو آگ کے ساتھ جواب دے گا وہی زندہ خدا ہوگا، اور جو آگ کے ساتھ جواب نہیں دے گا وہ اندھا، بہرا اور گنگا ہوگا۔ اور وہاں پر ہمیں جو واقعہ ملتا ہے کہ اس پروفیسی کو پورا کرنے کے لیے خدا کے بندہ پروفٹ ایلیا نے ورک آؤٹ کیا۔ ورک آؤٹ کیا تھا کہ وہ مذبح خداوند کا ڈھا دیا گیا تھا۔ اس پروفیسی کو پورا کرنے کے لیے اس مذبح کو پھر سے اس نے دوبارہ سے بنانا شروع کیا۔ اس نے پتھروں کو جڑا، اس کے اوپر لکڑیوں کو رکھا، اس نے اس بچڑے کے ٹکڑے کیے، ان کو اس کے اوپر ترتیب سے جڑا۔ لکھا ہے کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں، اسحاق کے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے شمار کے مطابق اس نے 12 پتھروں کو لیا اور جڑا اور ان کے اوپر لکڑیوں کو دھرا اور ان ٹکڑوں کو دھرا اور اس کے چگرد پانی کو ڈالا اور پھر خداوند سے دعا کی۔ ہم دراصل دعا کیسے کرنی ہے میں نے پچھلے دنوں میں بھی بتایا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے سے پہلے جو ہم خدا کا مذبح ہے، ہم اس کا مقدس ہے، پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کون سا پتھر، کون سا ایسا پارٹ آف باڈی ہے، جسم کا حصہ ہے جو ابلیس ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے میں اسے بناؤں، خدا میں اسے تیار کروں۔ کون سی ایسی کمی ہے جو مجھے خدا سے دور کرتی ہے، جو میری پروفیسی کو، جو میری نبوت کو، جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم اعلیٰ نسل اور شاہی کانوں کا فرقہ، کیونکہ خدا ان کا کلام فرماتا ہے،
खुदा उनका कलाम तो ये भी प्रोफेसी करता है कि सादक जो है वो खजूर के दरख्त की मानित है, और वो ये भी कहता है कि रास्तबाज जो है वो सूरज की रोशनी की तरह दोपहर तक बढ़ता जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ खुदा उनका कलाम प्रोफेसी करता है। हम दरअसल हमें ज़रूरत आज ये है कि जितनी खुदा के कलाम में प्रोफेसियाँ नबूवत हमारे हिस्से में लिखी गई हैं, हमें उनको पूरा करने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। जिस तरह एलिया ने वहाँ पर मज़बे को दोबारा से बनाया, दोबारा से तैयार किया और फिर खुदावंद से दुआ की, और खुदावंद ने उसके मज़बा के ऊपर आग को नाज़िल किया और उसके दुश्मनों को, खुदा के दुश्मनों को, उस इलाका के दुश्मनों को, बल्कि 450 झूठे नबियों को मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद ने, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने हमारी टीम को चुना हुआ है। हम चुने हुए लोग हैं माँ के पेट से, बल्कि उससे भी पेशतर जब हम उसके पास थे, अज़ल से उसने हमें अपने जलाल के लिए चुना। हालेलुया। ये बच्चे जो आज हमारे पास हैं, जोशिया जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में प्रोफेसी हुई है, जोशिया नबी जो जोशिया किंग जो बाइबल में है, उसके बारे में प्रोफेसी पहले ही हुई थी कि एक जोशिया बादशाह आएगा और वो ऊंचे मकामों को उठाएगा। और हम जब अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करते थे, तो जब खुदावंद ने हमें पेट का फल मिरास दिया, तो उसने साथ में दूसरे बच्चों के लिए भी प्रोफेसी की, आदम के लिए और बिथिया के लिए भी। और ये तीनों बच्चे जो है ये प्रोफेसी के साथ आए हैं, और जो प्रोफेसी के साथ दुनिया पर आते हैं वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। लेकिन अब जो बात सीखने वाली है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोफेसी तो खुदा ने इनके बारे में कर दी है, लेकिन वो प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होगी जब तक कि आप अपने बच्चों के बारे में परवरिश के तौर पर उनको खुदा उनका कलाम नहीं सिखाएंगे। आप उनके हर एक चाल चलन में खुदावन को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, तो ये प्रोफेसी कभी पूरी नहीं होगी। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब खुदावन का मुक़द्दस बंदा मूसा, जब खुदावंद मूसा से कलाम करता है कि जा और मेरी कौम बनी इस्राएल को छुड़ा ला, खुदावंद भी वहां पर एक प्रोफेसी करता है कि वो जो मिस्र के अंदर बनी इस्राएल कौम गुलामी के घर में है, वो मेरी कौम है। खुदावंद ये प्रोफेसी करता है कि वो मेरी कौम है, जा उसे जाकर छुड़ा ला ताकि वो मेरी इबादत करे, वो मेरी ईद करे। हालेलुया। तो खुदावंद का बंदा वहां पर गया, खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की, खुदावंद ने अपनी कौम के लिए बड़े बड़े मौजूदात किए, फ़िरौन और फ़िरौन के रथों समेत उनको समंदर में गर्क किया अपनी कौम को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर हमें एक बात मिलती है जो आज इस माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है कि जबकि खुदावंद ने प्रोफेसी कर दी है वो मेरी कौम है, वो उसको छुड़ा ताकि वो मेरी इबादत करे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुदा को तर्क कर दिया, खुदा को छोड़ दिया, और वो अपने ही उन बुरे कामों के अंदर मुब्तला हो गए। उन्होंने बछड़े बनाए, उन्होंने उन बुतों के आगे सजदा किया और खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और खुदावंद कहता है कि मूसा अब ये कौम जो है उस मुल्क में, जो मुल्क मैं इनको देना चाहता था, वहाँ पर नहीं जाएंगे जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। जो अच्छा मुल्क मैंने इनके लिए रखा था, अब ये इनको नहीं मिलेगा। और बात आज सीखने वाली यही है, अगर हमारे बारे में खुदावंद ने ये प्रोफेसी की है कि तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे कामों के लिए हो, तुम मेरे जलाल के लिए हो, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारी नस्ल मेरे कामों के लिए है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते, मेहनत नहीं करते, सैक्रिफाइस नहीं करते खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, उसके कामों के लिए हम आगे नहीं बढ़ते, तो फिर वो प्रोफेसी ज़ाया है। और फिर क्या होगा कि जिस तरह एक दिन उस बनी इस्राएल कौम को खुदावंद ने 40 दिन के रास्ते के लिए 40 सालों का रास्ता उनका बन गया, और वो वही उसी बियाबानों के अंदर हलाक हो गए, हम और हमारी नस्लें हलाक हो जाएंगी। वो प्रोफेसी ज़ाया हो जाएगी, रायगा हो जाएगी, और उसका कुछ अजर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता चलूँगी
جو प्रोफेसियां खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में हुई वो सारी की सारी पूरी हुई। कोई ऐसी नबूवत नहीं है बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पूरी ना हुई हो। हर एक नबूवत और प्रोफेसी पूरी हुई। जैसे जैसे वो काम करता गया उन नबूवत को, उन प्रोफेसियों को पूरा करता गया। लेकिन जो प्रोफेसी हमारे बारे में लिखी गई है, अगर चाहे हम उसके बारे में आलसी रहेंगे, हम ढीले रहेंगे, हम सुस्त रहेंगे, हम अपने कामों के अंदर मुब्तला रहेंगे, अपने घर की ज़रूरतों के अंदर मुब्तला रहेंगे, तो फिर खुदावंद का कलाम जो है उसका कहर शदीद भी आप पे भड़केगा, आपकी नस्लों पे भड़केगा। भाई जो मैंने तुझे काम दिया था तेरा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, सो मैं क्या करूँगा, तेरी बरकत लेकर तेरे हमसाए को दे दूँगा। हालेलुया। हम कहते हैं कि वो फलाना हमारा रिश्तेदार या फलाना खादम, उसको हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर गया है, उसका चर्च इस्टेब्लिश हो गया है, उसके पास फ़ौरन से आ रहे हैं, गोरे आ रहे हैं, जो भी वो खुदावंद उसको बढ़ा रहा है। लेकिन हर एक इंसान को बरकत तभी मिलती है जब वो खुदावंद के कलाम पर और अपनी प्रोफेसी को लेकर वर्कआउट करता है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक चीज़ पर कुछ दिन पहले गौर फिक्र कर रहा था कि इंसान जो है, इंसान अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करता है, मशक्क़त करता है, काम करता है। आज हम भी मशक्क़त कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, उनके घर के लिए, 100 तरह के मसलों मसाइल के लिए, ज़रूरियात के लिए। लेकिन अगरचा हम उनको आखिरी अयाम में जो जब हमारी अदालत होगी और जो हमारा फ़िरदौस है, अगरचा हम उसको हासिल नहीं करते, हमारी औलाद उसको हासिल नहीं करती, इस प्रोफेसी को वो हासिल नहीं करते, तो फिर ये हमारी मेहनत, ये दौड़ भाग, दुनिया की आमदरफ्त, ये ऐशो इशरत ज़ाया है, ये रायगा है। इससे हमें कुछ अजर नहीं मिलता। चाहे कुछ वक़्त के लिए हम दुनिया पर सुकून इत्मीनान हासिल कर सकते हैं, ये जो सुकून, ये तसल्ली जो है, ये कुछ वक़्त की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहता है कि मैं तुम्हें वो तसल्ली देता हूँ जो हमेशा की तसल्ली है। हालेलुया। उसकी तसल्ली, इत्मीनान जो है वो हमेशा के लिए है। वो कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ऐसा ना होते तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे घर हैं। लेकिन उन घरों को हासिल करने के लिए, उस कीमत को जो वहाँ पर रखी गई है खरीदने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। आज हम जब घर लेने जाते हैं तो हमें उस घर की कीमत अदा करनी पड़ती है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उस 20 लाख को इकट्ठा करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। और जो वहाँ पर घर है उनकी भी कीमत है, वो फ्री में हमें नहीं मिलेंगे, उनके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एड़ी चोटी का अगर जोर लगाएंगे, क्योंकि खुदा उनका कलाम फरमाता है कि खुदा में की हुई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और जब खुदा यीशु मसीह के चेले अवारी आते हैं और वो कहते हैं भाई हम तो सब कुछ छोड़ छड़ा कर तेरे पीछे आ रहे हैं, बता भी हमें क्या मिलेगा। और वो कहता है कि तुम्हारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। हालेलुया। और तुम बनी इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे तख्तों पर बैठकर। हालेलुया। ये खुदावंद के पीछे चलने से बहुत सारा अजर मिलता है, हमें बरकत मिलती है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि हमें हर एक बात के लिए जो प्रोफेसी हमारे वसीला के बारे में हुई है, हमारे बारे में हुई है कि तुम एक आला नस्ल हो, बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही कानून का फ़िरका हो, लेकिन उसके बारे में हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और रोज़े रखने पड़ेंगे, दुआएं करनी पड़ेंगी, खुदावंद के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसका मतालिया करना पड़ेगा, उस्तादों से पूछना पड़ेगा, और फिर हमें खलक में जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंडिया में जो खुदा के खादमीन है, मैं जब उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो वो कहते हैं कि 12 महीने में जो 11 महीने हैं वो हमारे लिए हैं, लेकिन जो 12वां महीना है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी दुनिया पर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी का है। हालेलुया। अगर आप फ़ौरन में भी चले जाएं तो वो भी इस महीने में, दिसंबर में अपने कामों को बंद कर देते हैं और इस पूरे महीने को सेलिब्रेशन करते हैं, इसको मनाते हैं। और इंडिया में भी बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं,
महीनों महीने उनको लग जाते हैं। वो क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि ये महीना जो है ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी का है। इस महीने में हम खुशखबरी की मुनादी करेंगे कि वो पैदा हुआ है और वो दुनिया में आया है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। और उनके एक महीना के काम करने के वसीला से, खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को दूसरों तक बताने के वसीला से खुदावंद उनको हर साल बढ़ाता और सरफराज करता है। हालेलुया। और अगर हम ये खिदमत, ये प्रोफेसी अपने तक ही रखेंगे तो ये हमने अपना तोड़ा जो है ज़मीन के अंदर डुबा दिया हुआ है। कोई नहीं जानता कि हमारे पास कौन सी खिदमत, कौन सा तोड़ा, कौन सी ब्लेसिंग है। और खुदावंद जब हमसे पूछेगा जब हिसाब लेने के लिए, तो फिर हम यही कहेंगे कि हमने तेरा तोड़ा जो है वो ज़मीन में दबा दिया था। हालेलुया। तो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि जो नबूवत, जो प्रोफेसी हमारे बारे में हुई है, हमें उसके लिए काम करना है। जो प्रोफेसी हमारे बच्चों के लिए हुई है, हमें उसके लिए काम करना है। दुनिया क्या कर रही है हमें इससे कोई मायने नहीं, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है। हमें सिर्फ खुदा के कलाम से, अपनी खिदमत से और अपनी नस्ल से वास्ता है कि हमने खुदा के साथ लिपटे रहना है। हम उस बनी इस्राइल कौम की तरह ना बने जिनका 40 दिन का सफ़र 40 सालों पर पड़ गया। वो ये बात सच्ची है कि ये प्रोफेसी तो बचपन से ही आपके बारे में हो चुकी है कि तुम एक आला नस्ल और शाही कानून का फिरका हो। अगर आप इस प्रोफेसी को पूरा नहीं करते तो ये 10 दिन या 40 दिन का जो सफ़र है ये भी आपका भी 40 सालों में है। अगर आप इस पे वर्कआउट नहीं करते, काम नहीं करते, अपना खुदावंद को पूरे तौर पर नहीं देते, अपना मज़बा दोबारा से फिर से नहीं बनाते, जिस तरह एलिया ने मज़बा बनाया, उस पर वर्कआउट किया और खुदावंद ने उस पर आग नज़र फरमा कर उसको फतहमंदी दी, उसको आज़ादी दी, बहाली दी और उसके दुश्मनों मुखालफों को उसने शर्मिंदा किया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी इस प्रोफेसी को लेकर बड़ी एहतियात के साथ और बड़े उससे कामों को लेकर जो खुदावंद ने हमें दिए हैं हम खलक में छाएं। सबसे पहले हम अपने मज़बे को देखें, अपने मज़बे को तैयार करें और खुदावंद से फायर को मांगे, क्या खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में उस आग को बेच जिस तरह तूने एलिया की कुर्बानी को बेचा, ताकि मैं तेरे काम को लेकर, तेरी खिदमत को लेकर, तेरी खुशखबरी को लेकर जब दुनिया में जाऊं तो तेरे मुकस्सिन रूहें, तेरे फरिश्तगान और तेरी आग जहाँ जहाँ मेरे पाँव का तलवा लगे, ऐ खुदावंद वो जगह मुझे देना, वो लोग मुझे देना और ऐ खुदावंद हम सब बाहम मिलकर ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने अपनी प्रोफेसी के लिए जो खुदा ने हमारे लिए की है उसके लिए मेहनत करनी है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो अच्छी चीज़ें भी नहीं खा सकता, अच्छे दिनों को नहीं देख सकता, अपनी ज़िंदगी के बेहतर दिन नहीं देख सकता। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तेरी जवानी को अकाबों की मानते असर नौजवान करूँगा। हालेलुया। अगर आप अकाबों की ज़िंदगी को देखें तो जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब 30-40 साल उसकी उम्र हो जाती है तो उसके बारे में लिखा है कि वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो उड़ नहीं सकता, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं, उसकी चोंच भी जो है वो भी बहुत वजनी, भारी और टेढ़ी हो जाती है, वो सही तरह से अपना शिकार नहीं कर सकता। तो फिर इसको फैसला करना होता है, अब या तो मैं मर जाऊँ या तो फिर से 5 से 6 महीने का प्रोसेस है, मुझे वो काम करना है। वो पहाड़ पे जाता है, अपनी चोंच को जो तोड़ देता है, अपने नाखूनों को तोड़ता है, फिर जब से उसके नाखून दोबारा से आते हैं, उसकी चोंच दोबारा से निकलती है, तो फिर वो अपने पंखों को निकालना शुरू करता है। वो अपने वजनी जो पंख उसके बन गए हैं वो निकालता है और फिर से दोबारा से उसके पंख निकलते हैं, तो फिर वो उसके जो जवानी है वो फिर से जवान हो जाता है, उसकी जो बुढ़ापा था वो जवानी में तब्दील हो जाता है और वो फिर से अकाबों की मानिद हवा में ऊपर उड़ता है और फिर से अपना शिकार करता है। हालेलुया। हमें भी ये आज फैसला करना है, क्या हमने अकाब की मानिद
اپنے بڑھاپے میں کچھ سال گزارنے ہیں یا پھر سے اپنی جوانی کو اثر نوجوان کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ خداوند کا کوئی کلام اپنے آپ پورا نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہماری محنت کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری اسپرچل لائف کو دیکھتا ہے، وہ ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے سیکریفائس کو دیکھتا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم کو اس نے آزاد کیا تو وہ کہتا ہے میں ان کو دیکھوں گا، میں ان کو چیک کروں گا۔ وہ 40 دن کا سفر اس طرف نہیں لے کر گیا، بلکہ وہ اس طرف سے لے کر گیا جس طرف سے رستہ لمبا تھا، اور وہ کہتا تھا میں ان کو دیکھوں گا، چیک کروں گا، میں ان کو آزاد تو کر دیا ہے لیکن میں ان کو دیکھوں گا کہ کیا یہ آگے جا کر مجھے میرے ساتھ وفادار رہتے ہیں یا مجھے ترک کر دیتے ہیں۔ تو جس بات کا خداوند کو اندیشہ تھا انہوں نے وہی کام کیا، انہوں نے خداوند کو ترک کر دیا، اور خداوند کا وہ فیصلہ صحیح تھا۔ اگر وہ 40 دن کے رستے سے ان کو اس ملک میں پہنچا دیتا تو وہ وہاں جا کر خدا کو بھول جاتے اور وہ اپنے ہی کاموں میں مبتلا ہو جاتے، اور خداوند کو پھر اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوتا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اور انہوں نے خداوند نے ان کو پرکھنے کے لیے دوسرے رستے سے لے کر گیا، اور انہوں نے وہی کام کیا جس کام کا خداوند کو اندیشہ تھا، کیا یہ آگے جا کر کہیں مجھے ترک نہ کر دے، کیا یہ ان برے کاموں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور رستے میں خداوند ان کو کہتا ہے، جب مدیانی کے علاقوں میں پہنچتے ہیں تو کہتا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ تم نے کوئی لین دین نہیں رکھنا، ان سے کوئی رفاقت نہ رکھنا، لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے رفاقت رکھی، ان سے لین دین کیا، اور وہ مدیانی جو تھے وہ بتوں کو پوجنے والے تھے، انہوں نے ان سے شادیاں کی، اور کیا ہوا کہ شادیاں کرنے کے بعد انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجنا شروع کیا، اور خداوند نے ان کو مارا، وہاں پر وبا آئی اور خداوند نے ان کو مارا۔ آج ہمیں بھی خداوند کا یہ زندگی بخش کلام سکھاتا ہے کہ اگرچہ ہم نے کام کرنا ہے، اگر یہ ہمارے دل کی خواہش ہے، اگر نہیں کرنا تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پھر پورے طور پر کریں، اگرچہ آپ سستی اور کاہلی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بند کر دیں، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے یا تو آگ کی مانند گرم ہو جا یا برف کی مانند سفید ہو جا، نیم گرم نہ رہ۔ نیم گرم شخص سے مجھے بڑی نفرت ہے، کیونکہ وہ میرا کام بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ ابلیس کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف ہو جا جو بھی کام کرنا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم میں سے بھی وہی لوگ آگے گئے جنہوں نے کہا کہ رہی بات اب میری اور میرے گھرانے کی، ہم تو زندہ خداوند کی ہی پرستش کریں گے۔ ہاللیلویا۔ جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، سیکریفائس کر لیتے ہیں، اور جو یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کیا کرتی ہے، دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیا ہمارے بارے میں کہتی ہے، ہم تو زندہ خداوند کی ہی عبادت کریں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔